You all are welcome in class 11th chemistry class. In the previous video, we have completed the IUPAC nomenclature of the organic compounds. Now we shall start with a new chapter, and that chapter is a easy chapter, means in a theoretical basis, means it's a theory chapter. You can learn it properly, but it will be containing few of the chemical equations. That equations you have to learn, you have to practice it, and it is an inorganic chapter, so you have to learn the balanced chemical equations. The practice will make you perfect in that case. The chapter which we are going to start is hydrogen. In this, the chapter is being divided into four basic parts. First is about hydrogen. Second, preparation and properties of hydrogen. Third, about water, that is hard water, soft water. And the fourth portion is hydrogen peroxide, the compounds of hydrogen and its preparation and properties. So we will be dividing the chapter into four parts, and today in this video we are going to discuss about the position of hydrogen in the periodic table. So let us start. The video is hydrogen. In this chapter we will be studying about hydrogen, its preparation properties, then about water, its properties, then about hard and soft water, and then hydrogen peroxide. So let us start first of all about hydrogen. Hydrogen, its electronic configuration is 1s1. 1s1 means in the first shell there is one electron. It is first element of the periodic table. You must have seen in the periodic table that it is placed in the group 1. Understand? And period number 1. Okay. Now the important point is that which we are going to discuss in the first video is hydrogen is having a peculiar property that it resembles with both alkali metals as well as with halogens. Means hydrogen resembles both alkali metals and halogens, and also so its position in the periodic table is anomalous. Means we can say, or we are not 100% sure that it should be kept along with the alkali metals, that is group 1, or with the halogens, that is group number 17. So here we are going to discuss about the position of hydrogen with in periodic table. Case 1, first case. So we will understand, or we will try to understand in the four different portions. First, resemblance with alkali metals. alkali metals और ग्रुप 1 यानी पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ उसकी क्या क्या रिजेंबलेंस हैं. पहले ग्रुप में एलिमेंट आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. तो इनके साथ कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मैच करती हैं. पहली प्रॉपर्टी कि हाइड्रोजन में एल्कली मेटल्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंस शेल में. मीन्स वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन, 1s1, पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन. लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2, 2s1, पहली शेल में 2, दूसरे में 1, लेकिन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1. लिथियम के बाद आता है सोडियम, उसमें थर्ड शेल में कितने होते हैं 1. तो हाइड्रोजन में एल्कली मेटल्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में. पहली रिजेंबलेंस. सेकेंड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग होता है एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन में एल्कली मेटल्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होता है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो इट इज़ हैविंग द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन. तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके -1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H plus ion. Similarly, sodium loses 1 electron and forms sodium cation. Second resemblance. Third, oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ऐसे भी समझ सकते हो वैलेंसी. हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स की तरह +1 वैलेंसी होती है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं. जैसे HCl में H की वैलेंसी +1. सिमिलरली NaCl में सोडियम की वैलेंसी +1. फोर्थ प्रॉपर्टी,
it releases at cathode similar to alkali metals like on electrolysis, यानी किसी भी हाइड्रोजन या एल्किली मेटल के कंपाउंड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और एल्किली मेटल कैथोड पर रिलीज होते हैं क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यानी कि रिडक्शन करके अपने एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल H+ आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिलीजेस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। सिमिलरली सोडियम आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, चेंजेस इनटू सोडियम एलिमेंट एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये ध्यान रखने वाली बात है। फिफ्थ रिजेम्बलेंस, हाइड्रोजन similar to alkali metals is a strong reducing agent। reducing agent क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्शन करके उनको रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स reduces other what element or the respective compounds। एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब समझते होंगे, सबने 10th में पढ़ा होगा, ऐसे सब्सटेंस जो कि दूसरों को रिड्यूस कर दें, ठीक है कि नहीं। जैसे Fe3O4 ट्राई आयरन टेट्रा ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो यह हाइड्रोजन O से कंबाइन कर लेगा, ठीक है कि नहीं। तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें से निकाल दिया उसने क्या चीज़, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। तो Fe3O4 का रिडक्शन हो जाता है इनटू Fe, ठीक है। ऐसे ही बोरोन ऑक्साइड B2O3 जब पोटेशियम के साथ हीट करते हैं तो KO से कंबाइन करके बनाता है K2O। तो K का हो गया ऑक्सीडेशन और B2O3 में से O निकल गया तो इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है कि नहीं, और ये बन गया बोरॉन। तो इन दिस रिएक्शन potassium act as a reducing agent, it reduces B2O3। In this reaction hydrogen act as reducing agent, it reduces Fe3O4, ठीक है कि नहीं। तो these are the resemblance of hydrogen with alkali metals। Case B, resemblance with halogens, that is with group 17 elements। ग्रुप 17 में एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और अपने नियरेस्ट नोबल गैस को एक्वायर करने के लिए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। सिमिलरली हैलोजेंस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस में कन्वर्ट होने के लिए उनको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 पहली शेल में 2, 2s2 2p6, ये इलेक्ट्रॉन है 7, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। नियरेस्ट नोबल गैस इसकी कौन सी है, नियॉन। तो ये इनमें रिजेम्बलेंस हो गया कि हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन both require 1 electron to become inert gas of their nearest position। Second point, ionization energy। ionization energy आप जानते होंगे, the amount of energy required to eject the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। यानी किसी भी gaseous atom के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, उसे हम कहते हैं आयनेशन एनर्जी। तो बोथ मीन्स हैलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी। मैंने वैल्यूज़ भी कोट कर रखी हैं। आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है 1312 किलो जूल पर मोल। आयनेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन है 1680 किलो जूल पर मोल। दीज वैल्यूज आर वेरी हाई if we compare the values of ionization energy with other elements। Third property is resemblance one is electronegative character।
means both hydrogen as well as halogen have the ability to gain electrons and also forms anion. Means similar to halogens, hydrogen also gains electron. H gains one electron to form H negative, means it forms hydride ion. तो देख लो हाइड्रोजन का डबल नेचर हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन बनाता है और जबकि इलेक्ट्रॉन लूज करके वो हाइड्रोजन आयन कैटायन बनाता है और यहाँ पर बना रहा है एनायन. सिमिलर टू हैलोजेंस लाइक फ्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फ्लोराइड आयन. ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से वैलेंसी. हाइड्रोजन शोज -1 वैलेंसी सिमिलर टू हैलोजेंस लाइक इन द मेटल हाइड्राइड्स. सोडियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, उनमें हाइड्रोजन की वैलेंसी है -1. सिमिलर टू हेलोजन जैसे सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन की वैलेंसी है -1. फिफ्थ पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस इज बोथ एग्जिस्ट इन डाईएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट. डाईएटॉमिक मतलब 2 एटम वाला मॉलिक्यूल लाइक H2, F2, Cl2, फिर Br2, I2 सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं. तो हाइड्रोजन हेलोजन से रिजेम्बलेंस शो करता है. 6th पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस इज हाइड्रोजन ऑल्सो रिलीजेस एट एनोड. लेकिन कंडीशन क्या है? ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मेटल हाइड्राइड्स. यानी मेटल हाइड्राइड की मोल्टन स्टेट में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन एनोड पर रिलीज होगा जैसे कि हेलोजेंस होते हैं. एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं. सोडियम हाइड्राइड मोल्टन स्टेट में अपने आयंस में ब्रेकअप होगा, सोडियम आयन और हाइड्राइड आयन. अब ये हाइड्राइड आयन एनोड पे जाएगा और एनोड पे वो ऑक्सीडाइज होगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन. तो हाइड्राइड आयन loses one electron and releases in the form of hydrogen gas. Similarly, sodium chloride molten state में undergoes dissociation to form sodium ion and chloride ion, and this chloride ion goes towards anode. There it gets oxidized by loss of electron. तो क्लोराइन इलेक्ट्रॉन लूज करके रिलीज होता है क्लोरीन गैस और ये प्रोसेस होते हैं कहाँ पर? एनोड पर. तो एनोड पर ही हाइड्रोजन रिलीज होता है और एनोड पर ही हेलोजन रिलीज होते हैं. तो रिजेम्बलेंस हो गई. फिर नेचर ऑफ कंपाउंड्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर कोवेलेंट कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स. यानी हाइड्रोजन हेलोजन की तरह नॉन मेटल के साथ सेम टाइप के कंपाउंड्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन के साथ CH4 और कार्बन के साथ CCl4. नीचे हेलोजन के एग्जाम्पल, ऊपर हाइड्रोजन वाले कंपाउंड. सिलिकन SiH4 इसको बोलते हैं सिलेन और ये SiCl4 सिलिकन टेट्राक्लोराइड. GeH4 इसको बोलते हैं जर्मेन और GeCl4 जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड. तो ये हो गया रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस. केस C डिफरेंसेस फ्रॉम एल्किली मेटल्स. अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की वो वाली प्रॉपर्टीज जो कि एल्किली मेटल से डिफरेंट है. फर्स्ट, आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई. अभी मैंने बताया था हेलोजन से मैच करती है, वाइल दैट ऑफ एल्किली मेटल्स आयनेशन एनर्जी इज लो. हम कंपैरिजन कर लेते हैं, वैल्यूज कोट कर रखी है. हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी है 1312 किलो जूल पर मोल, जबकि लिथियम जो एल्किली मेटल है, फर्स्ट एल्किली मेटल है जिसकी हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी है, वो सिर्फ है 520 किलो जूल पर मोल. तो डिफरेंस हो गया. सेकेंड, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जबकि एल्किली मेटल्स आर टिपिकली मेटालिक इन नेचर. दे विल शो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas hydrogen is a gas, it's a non-metal. Third, hydrogen exists as diatomic molecule while alkali metals exist as monoatomic, so like that of all other metals. Fourth, compounds of hydrogen are predominantly covalent. ज़्यादातर कंपाउंड हाइड्रोजन के कोवेलेंट होते हैं. H2O, CH4, SiH4, NH3, all these.
while that of alkali metals are ionic. डिफरेंट हो गया. एग्जाम्पल देख लो, HCl कोवेलेंट, NaCl आयनिक, H2O न्यूट्रल, Na2O बेसिक. तो डिफरेंस आ गया यहाँ पर. ये हो गया डिफरेंस विथ एल्कली मेटल्स. अब हम केस 4 यानी केस डी, डिफरेंसेस फ्रॉम हेलोजेंस. अब हेलोजन से भी कुछ डिफरेंसेस शो करता है. ये बहुत मक्कार एलिमेंट है. फर्स्ट, लेस टेंडेंसी फॉर हाइड्राइड फॉर्मेशन, यानी हाइड्रोजन की बहुत कम प्रॉपर्टी है कि वो मेटल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड बनाए. सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके साथ ही बनाता है हाइड्राइड्स. जबकि वाइल हेलोजेंस हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड्स. इंटरेस्टिंग सा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डू नॉट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. वाइल हेलोजन मॉलिक्यूल्स F2, Cl2, Br2, I2 all have लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. मैंने यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखा दिया है. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो सिंगल बॉन्ड बना लेता है. अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, कुछ भी नहीं. जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक के साथ बॉन्ड बना लेगा, 6 बच जाएंगे. ये 6 बचने का मतलब है 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ईच क्लोरीन एटम के पास है. तो ये भी डिफरेंस है. इसकी वजह से भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है. आगे पढ़ोगे आप केमिकल बॉन्डिंग और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करेंगे कि लोन पेयर होने से भी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं. थर्ड, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल होता है. जबकि ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन इज एसिडिक इन नेचर, Cl2O7 हाईली एसिडिक इन नेचर. तो इतनी ये चारों चीज़ें पढ़ने के बाद हम एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन निकालते हैं कि हाइड्रोजन इज अ रोग एलिमेंट. ये रोग एलिमेंट है. रोग ROGUE. रोग मतलब जो अनसर्टेन हो जाए, जो लोगों की बात न माने, वो अपने हिसाब से ही फॉलो करे दुनिया को, उसको बोलते हैं रोग. तो इट इज़ अ रोग एलिमेंट. इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड. हमने इस वीडियो में ये देखा कि हाइड्रोजन एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो एल्कली मेटल से रिजेम्बलेंस शो भी करता है, डिफरेंस भी शो करता है. हेलोजेंस के साथ रिजेम्बलेंस भी शो करता है और डिफरेंस भी शो करता है. लेकिन प्रैक्टिकली आप जितने भी पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें हाइड्रोजन को हमेशा ग्रुप 1 पीरियड 1 में एल्कली मेटल्स के साथ रखा है. ठीक है कि नहीं? क्योंकि कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज उसकी उनके साथ मैच करती हैं, इसीलिए वहाँ पे हमने रख दी है. अदरवाइज इट इज़ अ रोग एलिमेंट. दैट्स